देश का अपना चैनल। Namaskar and welcome to our program. Our guest today is the Vice Chancellor of the YMCA University of Science and Technology. We are delighted to have on our program today Professor Dinesh Kumar. Welcome to the program. Thank you, madam. YMCA University, it's still in its nascent stage. Tell us something about this university. YMCA University actually, it has got a long legacy. It started as a polytechnic college in 1969 with the Indo-German collaborative program. And since 1969, it was having a diploma program, 4-year diploma program, and was running very well. In fact, many of our alumni are placed so well. They are, top leaders either in the industries or in the administration. Many good students have achieved very high positions. But seeing this, what government thought that YMCA should be brought into the pool of state government somehow, because the quality was really good. And in 1993, I think they thought of, taking it to the state government. And in 1997, it became an engineering institute of the government. So full-fledged government engineering college. And in 2009, they thought that quality is so good, why don't we make this as a university? And so 2009, this was given a university status. And now since last 7 years, almost 6.5 years, this has become a full-fledged university, affiliating university this is, as per Act. But at present, we are having only, quality, only the education in the campus itself. We don't have any engineering college so far affiliated with us. Which should happen with time, of course. Yeah, government is seriously thinking that because the quality is good, so perhaps we may have many engineering colleges, around 20 to 30 colleges, perhaps maybe affiliated, and we are getting ready for that. And as it is, it's been adjudged as the best upcoming university in the country. Yeah, that's true. In fact, we are the best because as I told you that many of our students, ex-students, they are well placed. And especially industrialists, many of the good students, they have opened their own industries and they have appointed, they have recruited almost like 1,000 or 1,500 employees. So it's big industries they are running. So that way it is one of the best university, and I'm sure. और ये तो तब की बात है जब ये यूनिवर्सिटी अभी नहीं थी, पॉलिटेक्निक था, तब भी इसका एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था वो इतना ऊंचा था। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तब यूनिवर्सिटी नहीं थी, तभी इसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा था। तो यूनिवर्सिटी बनने के बाद में हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि इसको फर्दर बेटर बनाया जाए, और जो इसमें कमियां हैं, क्योंकि ये कॉलेज रहा, इसमें खासकर जो मेन जो ड्रॉबैक है यहाँ की रिसर्च और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है वो थोड़ा धीरे है, कम है, तो उसकी तरफ हम ज़्यादा अपने कदम बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि कॉलेजेस में नॉर्मली ये होता है कि टीचर सोचता है कि ठीक है, हमने पढ़ा दिया, बच्चे ने पढ़ लिया, डिग्री ले ली और नौकरी लग गई, बस खत्म हो गया। लेकिन यूनिवर्सिटी का मतलब मेरे ख्याल से अलग है। मैं मानता हूँ यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ें निकलनी चाहिए, रिसर्च की चीज़ें आनी चाहिए जो हम समाज को, सोसाइटी को दे सकें। तो मेरे को उम्मीद है कि हम अब कुछ नए कोर्सेज अपनी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर रहे हैं, अभी एमएससी प्रोग्राम नए अभी कर रहे हैं हम कुछ, और आने वाले समय में हम नेक एक्रेडिटेशन के लिए अभी बहुत जल्दी जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दैट,
we would like to introduce many new courses with the help of state government. And I'm sure that this university will achieve further new heights. You joined as Vice Chancellor last year in 2015. Yes, I joined as Vice Chancellor on 4th of November 2015. And since then we have done many things, but still things are actually, taking little time, but I'm sure those things will be realized soon. And आपके बारे में कहा जाता है कि you're very hands-on and you're quite the mover and shaker. You want things done fast. So, what has your personal experience been so far? I don't know where you got this idea, this kind of thing from me. But it's true, isn't it? In fact, you're right to some extent, because मेरी नेचर है somehow, और मैं चुपचाप बैठ नहीं सकता. और मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में यहाँ आने से पहले जहाँ प्रोफेसर था, वहाँ भी लगभग 4.5 साल 5 साल के करीब मैं डायरेक्टर रहा UIT इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का. वहाँ भी हमने बहुत सारी चीज़ें की. वर्ल्ड बैंक की ग्रांट से हम कनेक्ट हो गए वहाँ पर, बहुत सारी अपॉइंटमेंट की, बहुत सारी बिल्डिंग बनवाई, बहुत सारे नए कोर्सेज स्टार्ट किए. सो येस, यू आर राइट, द सेम काइंड ऑफ फीलिंग स्टिल आई हैव, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि YMCA में खासकर जहाँ ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, I'll do my level best. जब ये शुरू हुआ था YMCA पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए 69 में, तब यहाँ जर्मन टीचर होते थे. हाँ जी, हाँ जी. तो वो एक अलग ही स्टैंडर्ड था. उस स्टैंडर्ड को, टीचिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? देखो, वो बात तो ठीक है. उस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंट जस्ट हुआ ही था और टीचर्स की यहाँ कमी थी, तो जर्मनी से बहुत बढ़िया टीचर्स यहाँ आके पढ़ाते थे. और ये जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाया था या पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया था, वो इसी मकसद से बनाया था कि इंडिया में टेक्नोलॉजी के ट्रेन मैन पावर जनरेट की जाए. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में अपने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, IITs और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई कि उसके माध्यम से हमें बहुत सारे अच्छे टीचर्स अब मिलने लगे हैं यहाँ पर. तो ये बात नहीं है कि जो पहले जर्मनी के टीचर्स थे तो उस तरह के टीचर नहीं हैं, ऐसा नहीं है. हाँ, कुछ चीज़ें कमी है. ये जो एक कमी है, अच्छे टीचर्स की जो कमी है, रिसर्च के साथ साथ, हाँ, ये पूरे देश में है. ये पूरे देश में है. हर यूनिवर्सिटी में यही कहानी है कि या तो स्टूडेंट नहीं मिलते या टीचर्स नहीं मिलते. ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टीचर्स की वैसे तो इन जनरल कमी है, लेकिन हमारा मानना है कि YMCA की जो स्टूडेंट्स की अच्छी जो क्वालिटी हम लेते हैं, जो एडमिशन्स के हिसाब से हमारा हरियाणा में नंबर 1 है. हरियाणा छोटा स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी वी आर नंबर 1 आफ्टर NIT. तो मेरे को ऐसे लगता है कि आने वाले समय में YMCA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस डायरेक्शन में, कि अच्छे टीचर प्रोड्यूस करने के लिए भी हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. So what is it that you offer the teachers? We have started a PhD program in all branches of engineering. Right. पहले यहाँ पर PhD नहीं होती थी, और धीरे धीरे PhD जब करेंगे टीचर्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं MTech के बाद में, तो वो अच्छे इंजीनियरिंग के जो टीचर हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो उस तरह की वैल्यूज़ को हम उनमें इनकलकेट करेंगे. एंड आई एम श्योर कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर्स की जो कमी अभी है वो पूरी होगी. एक जो बड़ी समस्या आती है, पहली बात कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बच्चों का कम ध्यान जाता है, और जब जाता है एंड दे ग्रेजुएट, देयर इज द ब्रेन ड्रेन, पीपल मूव टुवर्ड्स द वेस्ट. तो इस तरफ आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि ब्रेन ड्रेन होता रहा है. आप खुद भी चले गए थे? मैं खुद भी चला गया था, लेकिन मैं पढ़ने गया था खाली, और पढ़ के वापस आ गया, और बीच बीच में जाता रहता हूँ, फिर आता रहता हूँ. लेकिन मेरा मानना है कि अब इंडिया एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुका है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग सो वेल. सब लोगों को लग रहा है कि इंडिया एक आने वाले समय में बहुत बड़ी पावर बनने वाला है. तो अगर आप बाहर अभी दूसरे देशों में जाएं तो वहाँ आपको फीलिंग ये नज़र आएगी. इंडियंस जो वहाँ पे सेटल्ड हैं वो सब कहते हैं कि यार हमें कोई रास्ता बताओ कि इंडिया में आके हम भी सेटल हो जाएं. तो एक जरूर भावना चेंज हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड कि इंडिया इज अपकमिंग कंट्री, सो व्हाई शुड वी मिस दिस बस. तो मेरे को उम्मीद है कि जो ब्रेन ड्रेन है वो तो अब बहुत कम हो जाएगा, बहुत लोग यहाँ काम करेंगे. और आप देखना कि इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज होंगी कि लोग इंडिया में रहना चाहेंगे. और ये जो अब नए इनिशिएटिव्स शुरू किए गए हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इसका कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा. मैं इसमें बताता हूँ कि YMCA भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. हमने डिजिटल इंडिया की बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि YMCA एक यूनिवर्सिटी है जिसका कि समाज के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने डिजिटल इंडिया के लिए हमने क्या किया है कि 5000 लोगों को, चाहे वो रिक्शा वाला है, चाहे वो कुली है, चाहे रेहड़ी वाला है, चाहे एक छोटा दुकानदार है, जिनको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, हम उनको डिजिटल लिटरेसी
कि हम डिजिटल लिटरेट करना चाहते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। हम क्या करते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी में हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो हमारी लैब खाली होती है जिस टाइम में जब कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं हो रहा, स्टूडेंट्स नहीं हैं, उस प्रोग्राम को हम उन लोगों को उसमें कनेक्ट कर रहे हैं और उनको डिजिटल लिटरेट करते हैं सो दैट दे कैन पे देयर टेलीफोन बिल ऑनलाइन, दे कैन बुक देयर ऑनलाइन टिकट, दे कैन डू देयर ऑनलाइन थिंग्स, जो दिनचर्या में उनके डे टू डे लाइफ में जो जरूरत पड़ती है चीज़ों की वो ऑनलाइन कर सकें। तो एक देश के लिए अगर ऐसे सारी इंस्टीट्यूट सोचें 5-5 हज़ार लोगों का बीड़ा उठाएं तो मेरे को उम्मीद है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक जो बहुत बड़ी सक्सेस हो जाएगा। और ये तो दिस इज क्वाइट अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव, क्योंकि आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर हो ना हो, राइट। तो बहुत सी आजकल ऐसी एप्स हैं जिसके जरिए पेमेंट्स की जा सकती हैं, और रेल की टिकटें बुक की जाती हैं, इन सब चीज़ों में बहुत मदद करता है। वैसे भी यू आर अप टू डेट विद द वर्ल्ड। राइट, यस। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, YMCA के स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट हैं कि दे आर डेवलपिंग न्यू एप्स देमसेल्फ। उन्होंने अभी मैं आपको एक बात शेयर करता हूं कि पिछले दिनों हमें कुछ YMCA के लिए ऑनलाइन कुछ फैसिलिटीज जनरेट करनी थी। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, भाई व्हाट वी कैन डू, एंड दे केम अप विद अ ब्यूटीफुल वंडरफुल आइडिया। They say, sir, you give us small money and don't worry about these things, we'll do it. You don't have to buy these products from market. Achha. And they have produced very good apps for attendance, very good apps for timetable, very good apps for online fee submission. Achha. So many things are being done in-house in YMCA, and that is the beauty of this thing, because the students are so energetic, so powerful. They are better than all of us. Many times you see, if you give your students little petting, look, do good, very good, then students are with you. उनको इनकरेज करना जरूरी है। एनकरेज करना बहुत जरूरी, थोड़ा सा एनकरेज करो स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये जो ऐप्स हैं, क्या ये सबके लिए अवेलेबल हैं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी? ये ऐप हमने अभी अपने लिए शुरू किया है, लेकिन जो हमारे पास जो 5000 का जिसके मैंने टारगेट बताया, जो लोग आ रहे हैं उनको हम इन ऐप्स के बारे में जरूर बता देते हैं थोड़ा सा, लेकिन उनको मेनली हमारा आइडिया ये है कि मोबाइल और कंप्यूटर से किस तरीके से उनके डे टू डे जो उनकी लाइफ में रिक्वायरमेंट हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। और ये जो 5000 लोग आते हैं आपके पास, जो ऑर्डिनरी 5000 एक बार में नहीं आते, हमारे पास में हर महीने कभी 50 आए, कभी 100 आए, इस तरह से हमने 5000 लोगों को ट्रेन करने का टारगेट रखा हुआ है। तो ये जो लोग आपके पास आए या आएंगे, इनको कौन पढ़ाता है? प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं? इनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हमने फ्री किया है तो इसमें मैं प्रोफेसर को पैसा नहीं दे सकता, और हमने इसको समाज सेवा के तौर पर देखा है। तो मैंने क्या किया है कि हमारे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कई बार कुछ खाली होते हैं, जैसे एमटेक के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, एमटेक हायर क्लासेस के, दे आर बीइंग पेड बाय गवर्नमेंट एज ए गेट स्कॉलरशिप, गेट फेलोशिप मिलता है उनको। तो व्हाई डोंट वी यूज देयर सर्विसेज एंड देयर एक्सपर्टीज टू ट्रेन अवर दिस मैन पावर। तो मैंने एक कुछ ऐसा, हमने यूनिवर्सिटी YMCA में ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलके 7-8 दिन के लिए उनको 2-2 घंटे का प्रोग्राम अपना टाइम देते हैं, एंड दिस इज बीइंग डन नाइसली। सो फार वी हैव आई थिंक गिवन ट्रेनिंग टू अराउंड 500 पर्सन्स लाइक दिस। तो इस तरह से जब स्टूडेंट्स वॉलंटियर करते हैं, हाउ डू यू इंस्पायर देम टू वॉलंटियर? You have to just praise them, just little praise. I will share one example with you. In the month of March, we had a conference, national conference, and Honorable Governor of Haryana, Professor Kaptan Singh Solanki ji, he was present as a chief guest in this conference. And then I asked my students that please do something so that our governor can see that something new is coming from YMCA. And then they said, sir, we will do it, but can you get our one photograph with the Honorable Governor? If we do something. I said, yes, we will do it. And simply getting, one opportunity for the students to have a photograph with the Honorable Governor, motivated them so much that they developed few, apps, and we got it inaugurated by Honorable Governor. And that kind of thing itself is enough. You don't have to do, आपको कोई मॉनिटरली उनको कुछ नहीं देना, कुछ नहीं करना, केवल उनको थोड़ा सा ये देना, वेरी गुड बोलो, अच्छा वेरी गुड, थोड़ा सा मोटिवेशन दो, दे डू वंडरफुल थिंग। इसके अलावा जो एक बहुत ज़रूरी बात होती है किसी स्टूडेंट को इनकरेज करने की, वो होती है एक्सेसिबिलिटी। सो टू बी दैट यू मेड योरसेल्फ एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आधा टाइम तो ये होता नहीं है ना। आप मैं एक डिफरेंट वाइस चांसलर हूँ, मेरे दरवाजे कभी बंद नहीं होते, ऑल द टाइम इट इज ओपन। 9-9:30 बजे मैं जब वाइस और आप तो रहते भी कैंपस में रहता हूँ, कभी भी कोई स्टूडेंट मेरे रूम में आ सकता है, मेरे दरवाजे के बाहर कोई आदमी बैठता नहीं कभी भी।
5 या 10 मिनट से ज़्यादा कोई वेट नहीं करता। तो इसलिए मेरे को ये कभी प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स कम टू माई रूम एनी टाइम, दे कैन वॉक इन जस्ट लाइक दिस, दे डोंट हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट विद मी। आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ, दे कैन टॉक टू मी ऑन स्ट्रीट ऑल्सो। Why are you different like this? Is this because of your training in Cambridge? Yes, to some extent, because I have seen that in Cambridge, when I was a student, I could do the same thing there. So I was a student in Selwyn College in Cambridge, and I used to talk to my professors or any other person anytime. So there I saw there is no gap between teacher and a student. They all are, you know, at the same level. They eat together, they drink together, they do everything together. So why we should create this kind of gap here in our university? So I'm using that idea, and I think it is going very well. I think it is fantastic. I hope other vice chancellors and teachers and professors get inspired by this, and they give this kind of access to their students. That's true. Only thing can be that in a big system, because YMC is a small system, perhaps I am able to do it more frequently now. If I am in a big system where I am having a lot of things, lot of visitors, perhaps then things may become difficult. But in an engineering university like YMCA, this is going to work like this. It's no problem. What is the campus like? We have got a campus which is very well, centrally located in the middle of Faridabad industrial town, and you will be surprised that metro train stops just in front of the YMCA gate. And so it is very nicely accessible from any part of the Delhi or nearby areas, and it is around 20-acre land campus. And you find that is not enough? We were thinking it is not enough earlier, and government was thinking that we should be given some land maybe at some far off place, and they allotted some land also, but somehow that could not happen because of some technical reasons. And in assembly in government of Haryana, it was decided that YMCA will expand vertically rather than horizontally. So we were also quite, happy with the idea that because this is centrally located place, so using this locational advantage rather than going to a far off place and not developing, we thought of why not. So we have decided that we will construct our buildings vertical, like in other countries, like in US. If you go, only 5-acre land is enough to run a university. In Singapore, if you go, like few acre of land is enough to run a university. So we are of the idea that why not, we can also do it here. कई बार ऐसे होता है वर्टिकल ग्रोथ में जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में जो जैसे प्लेग्राउंड्स हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो जगहें हैं वो सैक्रिफाइस हो जाती हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे पास 20 एकड़ लैंड काफ़ी है। उसमें से यदि हम जो प्लेग्राउंड के लिए और सारी चीज़ों के लिए जगह रखें, उसके बाद भी हम ये कर सकते हैं। So you're ensuring we are ensuring that our playground is intact, it is not damaged or destroyed. It should be kept, and still we would like to construct buildings and residences and hostels, as multi-story buildings, and we would like to develop the campus, in a nice way. We are in the process of developing a master plan, which will, be ready within few months, and that master plan will be like Vision 2050. It is not a short vision program, because we have to see, at a long distance, and long-term plan. So we are going to develop the university very nicely as per that plan. इतना ब्यूटीफुल उसका कैंपस है, and you're saying that you have very strict admission policy ताकि आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स आएँ, तो उसमें जो पास परसेंटेज का गड़बड़ होती है जहाँ बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती है, उसका क्या हिसाब किताब है? बच्चों को एडमिशन मिलना तो देखो वही है, आपको टॉपर लिस्ट पे आना पड़ेगा। YMCA का समहाउ हरियाणा में नंबर 1 होना अपने आप में ये कहता है कि सभी को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। हमारे एडमिशन्स हरियाणा स्टेट की जो टेक्निकल सोसाइटी है उसके थ्रू, सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू होते हैं, तो एडमिशन मिलना वाकई में टफ है। लेकिन जो पास परसेंटेज है उसमें नॉर्मली 90-95% रिजल्ट हमारा रहता है एट द एंड ऑफ द डे। Few students do not qualify, are not able to do it just because of some reasons, either they are not well or they do some problem. But otherwise, our results are declared in time, and pass percentage is good. So, and what about placement? Placement is very good. In fact, YMCA is the only institute or university, I will say, जो इंजीनियरिंग के एरिया में जो हरियाणा में, मतलब अपार्ट फ्रॉम NIT, where almost placement is 100%, because whosoever is qualified, यदि किसी की डिग्री नहीं होती तो बात अलग है, अदरवाइज whosoever qualify and is eligible for placement, they get jobs.
And one of the important things in placement, especially with your temperament, is that besides bookish knowledge, there has to be hands-on experience. तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया बात आपने कही है। YMCA एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया 1969 में जब इंडो जर्मन प्रोजेक्ट की तरह जब स्टार्ट हुई थी, YMCA कॉलेज जब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर जो वर्कशॉप जो बनाई थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वर्कशॉप, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्कशॉप बनी है। मेरे ख्याल से किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आपको इतनी बड़ी वर्कशॉप नहीं मिलेंगी जितनी YMCA में बनी है। इट्स ए ह्यूज वर्कशॉप एंड एवरीवन गेट्स अपॉर्चुनिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन द इक्विपमेंट। ये नहीं है कि 5 बच्चे एक ही इक्विपमेंट पर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं, एक काम कर रहा है 4 देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। एवरीवन डज वर्क बाय देमसेल्फ, खुद अपने हाथों से काम करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। अभी पीछे कुछ स्टूडेंट्स अभी एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, वो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट था उनका। एक ऑल टेरन व्हीकल, उन्होंने एक मोटर व्हीकल बनाया था। उसमें कुछ लड़कियां थी, 30 स्टूडेंट्स उसमें काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट में, और टाइम बाउंड था। सो यू विल बी सरप्राइज टू हियर दैट दिस द काइंड ऑफ वर्क द स्टूडेंट्स वर डूइंग। मेरे घर के सामने ही एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई थी उन्होंने रात को, जहां काम करना है। रात को 2 बजे भी स्टूडेंट्स, at 2 o'clock in the night, even girls, boys, they used to work, and I used to be so, surprised कि क्या हो रहा है। तो वाकई में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, और शायद यही इसका रीजन है कि जो स्टूडेंट्स की जॉब है, ऑलमोस्ट एवरीवन गेट्स अ जॉब। दैट इज द रीजन, बिकॉज उसका जो वर्कशॉप कल्चर है, दैट्स वेरी स्ट्रांग। तो जो बच्चे हैं वो पढ़े गुढ़े माने जाएंगे। पढ़े और गुढ़े, बिल्कुल। तो खाली बुकिश नॉलेज नहीं है, दे ऑल्सो हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज। आपने बात की लड़कियों की कि वो भी 2 बजे तक प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, और वेल्डिंग का प्रोजेक्ट था। तो ऐसे में लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए क्या कोई खास कदम उठाए जाते हैं? हाँ, उसमें हमारे यहाँ पर ऐसा है, यदि लड़की कैंपस में रहती है, हॉस्टल में रहती है, तो कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं और कुछ अरेंजमेंट ऐसा कर देते हैं हम वार्डन्स के थ्रू कि दे आर टेकन केयर। वो जो वर्कशॉप बनाई है वो हमने रेजिडेंशियल एरिया में बनाई है, बिल्कुल वाइस चांसलर के रेजिडेंस के सामने है, सो दैट दे आर कंप्लीटली अंडर वॉच। कोई ऐसी बाहर से तो कोई आदमी आ ही नहीं सकता वहाँ पर। सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो ऐसा है कि रात को एक टाइम के बाद में कोई बाहर से नहीं आ सकता, लेकिन इनसाइड सिक्योरिटी भी ऐसी है कि दे आर, we leave them free, but within the that region there, within that area, there's some guard या जो हमारे वॉचमैन है वो रहते हैं वहाँ पर। कोई भी ऐसी चीज हो नहीं सकती, we ensure that। लेकिन यदि लड़की कैंपस से बाहर है तो फिर उसके पेरेंट्स, खासकर मैंने देखा है कि क्योंकि वो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है, तो कभी कभी किसी का भाई, किसी का फादर, वो स्पेशल उनसे परमिशन लेके दे आर वेटिंग देयर फॉर फ्यू डेज। सो दैट इज डन बिकॉज टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होने की वजह से कभी कभी होता रहा है। तो ऐसे में जब इस तरह के टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो जो डे स्कॉलर्स हैं, डू यू हैव अरेंजमेंट्स फॉर देम टू स्टे द नाइट? नो, डे स्कॉलर्स में वो नियर बाई एरिया से ही हैं। फरीदाबाद में 8-10 किलोमीटर के आसपास रहते हैं, तो उनके मदर फादर, उनके कोई ना कोई घर में कोई लेके आते हैं उनको, और दे आर गिवन सम प्लेस टू सिट देयर, वहाँ आराम से बैठते हैं, खाना खा के आगे, जैसे घर चले गए खाना खा के आगे, लेकिन उनको जो ले जाने के लिए, रात को ले जाने के लिए उनके पेरेंट्स में से कुछ ना कुछ करते हैं। और क्योंकि ये वीसी के रेजिडेंस के आसपास ये सब होता है, तो जाहिर सी बात है कि वीसी की 24 घंटे की ड्यूटी, वीसी की भी 24 घंटे की ड्यूटी है। कभी कभी मैं रात को उठता हूँ, देखता हूँ बच्चे काम कर रहे हैं, कभी कभी मैं चला जाता हूँ उनके पास में, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो भी सरप्राइज होता है कि भाई चांसलर यहाँ मेरे पास में क्यों आ गया हमारे पास में। लड़कियां क्या इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रही हैं, आपको लगता है? हाँ, YMCA यूनिवर्सिटी में तो बेसिकली लेट मी टेल यू, YMCA की यूनिवर्सिटी ऐसी है, वो वुमेन यूनिवर्सिटी हो गई ऑलमोस्ट। वहाँ टीचर्स भी मोर देन 50% वुमेन है, और स्टूडेंट्स भी मोर देन 50%। या तो ये कहो कि जो क्वालिटी स्टूडेंट्स वही आते हैं, तो लड़कियां ऊपर आने लगी हैं, आपको पता ही है जी। तो जो लड़कियां ऊपर आ रही हैं तो उनका एडमिशन हो जाता है YMCA में। तो लड़कियां को तो YMCA यूनिवर्सिटी में तो वाकई में नंबर काफ़ी है। और ये तो बहुत खास बात इसीलिए भी है दैट हरियाणा में वैसे भी हम बोलते हैं कि वो सेक्स रेशियो जो है स्क्यूड है, women and girls in particularly are not treated too well। तो अगर ऐसी स्टेट में अगर लड़कियां इस तरह एजुकेट हो रही हैं और उनको इस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, दिस इज़ अ बिग थिंग। देखिए, हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल जी, उनके आने के बाद में हरियाणा का जो गर्ल्स का जो रेशियो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जब शुरू हुआ था, उनका प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके बाद ऑलमोस्ट रिजल्ट दिखाने लग गया कि बढ़ने लग गया। तो बेटियों का नंबर तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी ये हम बढ़ने की डायरेक्शन में बढ़ चुके हैं। बात रही कि जो बेटियों को अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलता है नहीं मिलता, वो भी मिल रहा है, और मेरे को लगता है कि विद इन फ्यू मोर ईयर्स चीज़ें और इम्प्रूव हो जाएंगी, और उस डायरेक्शन में हरियाणा काम कर रहा है। Well, I hope that this continues like that.
आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू। विल बी राइट बैक। मुझे पढ़ना पसंद था, मगर हमारे गांव में स्कूल 10वीं पे आके खत्म हो जाता था। पर मेरे बाबा को ये मंजूर नहीं था। वो मेरे लिए एक कंप्यूटर ले आए। अब मेरा विकास मेरे गांव के विकास तक सीमित नहीं था। इस कंप्यूटर के जरिए मैं दुनिया भर के टीचर्स और साइंटिस्ट से घर बैठे सीख सकता था। मेरा दुनिया बदलने का सपना अब एक सपना नहीं, एक ऐसा सच है जिसे मैं हर पल जीता हूँ। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। वेलकम बैक। हमारी बातचीत चल रही है YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश कुमार के साथ। प्रोफेसर साहब, कुछ बात आपकी पर्सनल लाइफ की जाए। सबसे पहले तो मुबारकबाद फॉर रिसीविंग द होमी भाभा अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Thank you very much. And you're the first scientist and vice chancellor in Haryana to receive it. Yes, That's in Haryana. historical. Yes, in Haryana. Yes, yes. वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ जी. Yes. And so you are now in glad company. What did you receive the award for? In fact, this award is actually overall contribution towards your research, what you have done in over the years. And this was given to me on the occasion of Indian Science Congress Association meeting in Mysore this year. 103rd conference. In 103rd Indian Science Congress meeting. And this has been given basically your contribution in the research, what kind of work you have done in microelectronics and semiconductor area. And overall research, it is not only for one particular problem. Whatever work has been done there, it is assessed, and this whole thing has been done on the basis of that. How did you come into this field of microelectronic engineering, semiconductors? Yeah, as I told you that after doing my MSc from Kurukshetra University and MPhil, I was awarded Commonwealth Scholarship by Association of Commonwealth Universities, England. Achha. This is also a rare distinction, and this happened, I think they select around 25 students from all over India per year. At that time they used to select 25 students, and I was one of them. And I got This was in 84? This was in 1990. 1990. Yes. Okay. And this award was given to me for 1 year program in the beginning. And that program was MPhil in Microelectronics Engineering and Semiconductor Physics. Achha. And this MPhil program was being conducted by Cavendish Lab
you know Cavendish Lab, world famous lab, Cavendish Lab and Engineering Department of Cambridge University. So जैसे ही मैंने कंप्लीट किया कोर्स, मैं चाहता था पीएचडी भी किस तरह की जाए, तो मैंने दोबारा अपने वहाँ प्रोफेसर से बात की, तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर पीएचडी आल्सो हियर. सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस होल फील्ड, that I started doing my research also in the area of semiconductors, devices. Why did you choose semiconductor and devices? Because normally लोग engineering करते हैं, mechanical engineering की तरफ जाते हैं या chemical engineering की तरफ जाते हैं. मेरा फील्ड MSc फिजिक्स था. MSc फिजिक्स में एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एज वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन. अच्छा. तो MSc फिजिक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलाइजेशन था, उसको ध्यान में रखते हुए नेचुरल चॉइस यही था कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स वो फिजिक्स ही है. बट देन लेटर ऑन इट बिकेम मोर टुवर्ड्स इंजीनियरिंग. आई स्टार्टेड माय डिग्री एज ए फिजिक्स, एज ए साइंस स्टूडेंट, बट फाइनली आई एंडेड अप इन डूइंग माय डिग्रीज इन इंजीनियरिंग आल्सो. सो मेरा मैंने तो 3 मास्टर डिग्री किया है. MSc फिजिक्स किया, फिर MPhil फिजिक्स किया, फिर MPhil माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया कैवेंडिश लैब से. आप एक डिग्री से सेटिस्फाइड नहीं थे या नहीं, वो बाई चांस अपने आप होता रहा, अपने आप एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती रही, करते रहना पड़ा. तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसे ही चलता रहता है. इनफैक्ट कहीं ये डेस्टिनी का भी खेल है, क्योंकि हाउ यू केम इनटू MSc इज आल्सो इन इटसेल्फ अ स्टोरी. ट्रू, यस, that's also story. In fact, I got admission in Punjab Engineering College, Chandigarh, in electrical engineering department, and just because of some reasons, I had to leave that course. And when I was coming from Chandigarh to Palwal is my hometown. Someone told me, why don't you try your luck for a MSc degree at Kurukshetra? And Pipli is a town, जहाँ छोटा सा टाउन है, बीच में आता है जो, तो वहाँ बस रुकती है. तो मैंने कहा चलो जाते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देखते हैं. And I was actually very good student in BSc. I got second position in the whole university. अच्छा. On the basis of that, जो वहाँ का जो प्रोफेसर था पंजाब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वो कहने लगे यार तुम पहले कहाँ थे, इतना लेट क्यों आए हो. तो उन्होंने मुझे थोड़ा डांटा कि लेट क्यों आए हो, लेकिन फिर उन्होंने मेरे को एडमिशन दे दिया ऐसे ही. कहता विल गिव यू एडमिशन. उस टाइम पे एडमिशन ऐसे ही मिलता था. इफ यू आर गुड, प्रोफेसर यूज्ड टू गिव एडमिशन. वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऐसे आ जाओ एडमिशन ले लो. As simple as that. As simple. लेकिन केवल आप यदि अच्छे हैं, आपका मेरिट अच्छा है, तो भरो एप्लीकेशन भरो, प्रोफेसर यूज्ड टू रिकमेंड. अच्छा, आपकी जो बचपन बीता है वो ननिहाल में बीता है. हाँ, बचपन मेरा ननिहाल में बीता है. और वहाँ किसी का पढ़ाई लिखाई में कोई खास ध्यान नहीं था? वहाँ पढ़ाई लिखाई में नहीं, सारे बिजनेस फैमिली है, वो ज्यादातर सब बिजनेस करते हैं. तो आप इस तरफ कैसे आए, एकेडमिक्स की तरफ कैसे? मेरे को लगता है कुछ लेवल की ना इनसिक्योरिटी मेरे मन में रहती थी कि शायद ये तो सब बिजनेस करते हैं मेरे ननिहाल वाले, पता नहीं मेरा क्या होगा. मेरी मदर की डेथ हो गई थी बचपन में, तो मैं उनके पास रहता था. तो समहाउ मेरे मन में एक रहता था कि आई शुड डू समथिंग, मेरे को हार्ड वर्क करना चाहिए. तो शायद वो फीलिंग ने मेरे को इधर बढ़ाया. एंड डिड यू हैव अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड शुरू से, कि कहीं और ध्यान था? और ऐसा नहीं था कि SD कॉलेज पलवल हुआ करता था. पलवल जो आपके नज़दीक है, दिल्ली के नज़दीक है जी. तो वहाँ एक ही कॉलेज होता था. उस कॉलेज में एडमिशन मिला तो रिलेटिवली आई वाज ओके स्टूडेंट, ठीक स्टूडेंट था. और मेरे को BSc करते करते ठीक रहा. फिजिक्स में मेरा ज़्यादा मार्क्स भी ज़्यादा आता था, रिजल्ट अच्छा आता था. तो मैं वही नेचुरल टेंडेंसी थी, जो फिजिक्स में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपके फिजिक्स में MSc के लिए चल दिया आप जी. तो इस तरह की बातें थी. पर बचपन में आप क्या सोचते थे कि आप क्या बनना चाहते थे? बचपन में तो मैं धर्मेंद्र बनना चाहता था. वो फिल्म देख के ना आदमी इम्प्रेस हो जाता है कि यार ऐसा बनना चाहिए, वो बनना चाहिए. कई तरह की चीजें चलती हैं वो. लेकिन धर्मेंद्र एज एन एक्टर या कोई एक रोल उनका था? हाँ, एक मतलब ऐसा एक्टर का मतलब ऐसा होना चाहिए. कोई पर्टिकुलर फिल्म को देखते तो हाँ ऐसा बनना चाहिए. अच्छा, इस तरह की चीजें रहती थी. वो एक छोटे बचपन का मतलब बिल्कुल छोटे जब बच्चे होते हैं तब की बात. धीरे धीरे चेंज होती रहती है. तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ गए आप कभी? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैं कल्चरल प्रोग्राम में कुछ स्कूल में तो पार्टिसिपेट करता था. और यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट तो नहीं किया, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करता रहता था. किस तरह की एक्टिविटी? कुछ जैसे डिपार्टमेंट का कल्चरल प्रोग्राम होता था, स्किट्स होते थे, कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम होते तो उनमें पार्टिसिपेट करते थे. और स्पोर्ट्स में भी मैं खो खो खेलता था उस टाइम. खो खो आजकल तो ज़्यादा खो खो नहीं होता, उस टाइम स्कूल में बहुत खो खो चलता था. तो हाँ, इस तरह की चीज़ें होती रहती थी. तो फिजिक्स में आपके कौन आइडियल्स थे? फिजिक्स में अगर वैसे देखा जाए तो मेरे जो कॉलेज में मेरे जो टीचर थे वो मेरे को आइडियल लगते थे. हमारे MR शर्मा जी हुआ करते थे. मैं कहता था बहुत अच्छे टीचर हैं. जो अब टीचर इमीडिएट टीचर होता है वो आइडियल लगता है आपको.
और उससे पहले स्कूल में हमारे एक टीचर थे, वो आइडियल लगते थे। तो फिर यूनिवर्सिटी में आके हाँ कुछ टीचर हमें लगे हाँ यार हमारे चट्टोपाध्याय जी हैं, ये बहुत अच्छे टीचर हैं, वो आइडियल लगते थे। जब हम कैम्ब्रिज में गए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले, वहाँ नोबेल लॉरेट भी घूमते रहते थे, कई बार आसपास देखते थे बहुत सारे लोग रहते थे, वो आइडियल लगते थे। तो आइडियल तो ना एक तरह से चेंज होता रहता था बीच बीच में, लेकिन हाँ मतलब बहुत सारे लोगों से मेरे को सीखने का मौका मिला और मन में रहता है कि हाँ जो भी आदमी अच्छा लगता है आपको आइडियल बनने के लिए, वो मन में प्रोत्साहित करता है जरूर। रिसर्च कर जो आपने कई क्षेत्रों में रिसर्च की है आपने? हाँ, मेरा मेनली मटेरियल्स में हुआ, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में और डिवाइसेस में हुआ है। मैंने जब कैम्ब्रिज में था तो मैं सेमीकंडक्टर जो मैंने बोला आपको गैलियम आर्सेनाइड के ऊपर काम किया, उनसे कॉन्टैक्ट बनाने के ऊपर। फिर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम किया, कुछ जोसेफ्सन जंक्शंस डिवाइसेस के ऊपर काम किया। फिर पीएचडी करने के बाद मैं वापस आया, यहाँ पर लिक्विड हीलियम की प्रॉब्लम थी क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी के लिए लिक्विड हीलियम चाहिए आपको। तो देन अगेन मैंने सेमीकंडक्टर में पूरा काम शुरू कर दिया। फिर यहाँ जिंक ऑक्साइड के ऊपर काम किया, ग्राफीन के ऊपर काम किया। तो कई तरह के मटेरियल्स हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी जैसे मिलती थी उसके ऊपर काम करते थे। अभी मैंने 15 स्टूडेंट अब तक पीएचडी स्टूडेंट्स गाइड किए हैं और सभी स्टूडेंट जो मेरे हैं पीएचडी गाइड हुए हैं ऑलमोस्ट डिफरेंट एरियाज में हैं। तो कोशिश रहती है कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर काम करो और चीज़ों को बढ़ाओ। इनमें से जो जिन मटेरियल्स पे आपने काम किया है वो प्रैक्टिकल यूज में कहाँ? वो प्रैक्टिकल यूज में बहुत आते हैं। आपने देखो मेनली जो आईसीज बनते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉन जो चिप्स बनते हैं कंप्यूटर्स में, वो सिलिकॉन की होती हैं। मैंने गैलियम आर्सेनाइड बेस पर काम किया था क्योंकि वो आपके स्पेस एप्लीकेशंस के लिए, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम होता है, डिवाइसेज यूज होते हैं, तो वो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड होते हैं। फिर जो आगे जो यहाँ पे काम किया ग्राफीन के ऊपर, ग्राफीन आपका आजकल काफ़ी अपकमिंग मटेरियल है। एक अभी स्टूडेंट ने पीएचडी सबमिट किया, उसका सबमिट की अवार्ड हो गई है, उसने ग्राफीन के ऊपर काम किया है। बीच में जिंक ऑक्साइड भी एक अच्छा मटेरियल है जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी काम किया है। So there are different kind of areas where students have worked and diffusion barrier के ऊपर काम किया है। जो ICs में जो प्रॉब्लम है, खासकर जो कॉपर डिफ्यूज करता है सिलिकॉन में बहुत तेजी से, उसको रोकने के लिए डिफ्यूजन बैरियर के ऊपर 4 पीएचडी स्टूडेंट ने अलग अलग एरियाज में काम किया है। वो एक बहुत अच्छा काम है और आई एम श्योर दैट चीज़ें चलती रहेंगी आगे भी। आप जो वाइस चांसलर बने तो आपकी पर्सनल रिसर्च तो रुक गई होगी? आपने ठीक कहा है कि मेरी अभी भी लैब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है और मैं वीकेंड को कोशिश करता हूँ वहाँ जाऊँ और अपने स्टूडेंट से बात करूँ। अभी तक तो होता रहा है, लेकिन अब पीछे कुछ दिनों से मेरा कम हो पा रहा है क्योंकि ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने लग गया यहाँ पर। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं इसको पूरी तरह ख़त्म तो नहीं होने दूंगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो आपको एनर्जी नहीं मिलती है, थोड़े दिन में लगता है कि आप ड्रेन आउट हो रहे हो, एनर्जी आपकी ख़त्म होती जा रही है। तो आई मेक श्योर कि वाईएमसीए में कुछ ऐसी चीज़ें शुरू की जाएं और रिसर्च का जो हमारे वाईएमसीए में थोड़ा सा कम है उसको थोड़ी सी और गति प्रदान करें हम, ये मेरा मानना है। और वाईएमसीए में आप किस किस एरियाज में रिसर्च के लिए कोशिश कर रहे हैं? वाईएमसीए में हमारे मैंने जब जाने के बाद में वहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत कम थे, तो आने के बाद में मैंने रफली 12 रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए लोगों को मोटिवेट किया और हमने फंडिंग के लिए उनको अप्लाई कर दिया। रिजल्ट उनका आना बाकी है अभी। और फिर हमने अपनी यूनिवर्सिटी की ग्रांट से लगभग 22 टीचर्स को माइनर प्रोजेक्ट दिए हैं, 2-2 लाख के 2.5 लाख के रुपए प्रोजेक्ट दिए हैं जिसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके वो रिसर्च काम करना शुरू करें। तो मेरे को लगता है कि जो हम अभी काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट कुछ दिनों में आना शुरू हो जाएगा और R&D एक्टिविटीज़ को हम बढ़ाएंगे। वाईएमसीए को हमें टीचिंग हमारी ठीक है, बढ़िया है, प्रैक्टिकल लैब बढ़िया है, स्टूडेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन जो R&D का जो काम है वो वाकई में थोड़ा धीरे है और वो मेरा मानना है कि जो मेरा 3 साल का टेन्योर है मैं उसमें R&D की तरफ ज़्यादा काम करूँगा। आई होप दैट कम्स थ्रू। पर उसमें जब R&D की बात होती है तो उसमें एक जो मेन फैक्टर होता है वो फंडिंग का होता है। बिल्कुल ठीक कहा है। तो हम फंडिंग के लिए बहुत सारी एजेंसीज को अप्रोच कर रहे हैं, खासकर जैसे अभी रूसा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान जो है उसके तहत बहुत बड़ी गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है और उसके लिए कंडीशन है कि आपको एक्रेडिटेशन होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी का। तो हमने अभी नेक एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर हमारा नेक का विजिट ड्यू है। तो वंस दैट इज डन वी विल बी एलिजिबल फॉर मैनी ग्रांट्स। तो हमें यूजीसी की ऑलरेडी 12B 2F के माध्यम से ग्रांट मिलनी शुरू हो गई है और बहुत सारी एजेंसीज हमें ग्रांट देंगी। अभी वर्ल्ड बैंक की ग्रांट के लिए भी हम एलिजिबल हैं। तो हम NBA भी कराने वाले हैं और मेरा मानना है कि अब जब सारी चीज़ें हमारे एक्रेडिटेशन प्रॉपर हो जाएगा तो हमें फंडिंग की कमी नहीं रहेगी और वाईएमसीए में वाकई में रिसर्च का एनवायरनमेंट बन जाएगा। And then the sky also won't be the limit. Then sky will not be the limit. That's true. That's true. That would be a wonderful state to be. Yes. What keeps you motivated?
स्टूडेंट्स को तो आप मोटिवेट करते हैं, टीचर्स को भी करते हैं। मेरे को लगता है कि मेरे घर में भी शायद ऐसा एनवायरनमेंट है। मेरी वाइफ हु इज ए प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, शी डज रिसर्च ऑल्सो बाय हरसेल्फ, शी इज बिजी। जब मैं घर में जाता हूँ तो वो सारे दिन पेपर पढ़ती रहती है, जब मेरे पास टाइम ही नहीं होता। सम टाइम वी गो, मैं घर से जाता हूँ तो मेरे को वो काम कर रही होती है, मेरे को लगता है क्या करना है, ये काम कर रही है, मैं भी काम करने लग जाता हूँ। अच्छा। और हमारा माहौल घर का भी सारा ऐसा ही है। मेरी बेटी है, सी इज स्टूडेंट इन ISB हैदराबाद, सो वो IIT रुड़की से उसने अपनी डिग्री की, उसके बाद ISB से तो हमारे घर का माहौल ऐसा है कि सब एकेडमिक्स का चलता रहता है। तो मेरे को लगता है कि एक दूसरे को देख के मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहता है। तो एकेडमिक्स के अलावा किसी और चीज़ में ध्यान नहीं है? एकेडमिक्स के अलावा बाकी सोशलाइज, कभी कभी सोशल सर्विस, सोशल एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। कभी कभी स्कूल में जाके कभी कुछ एक्टिविटीज़ में हेल्प करता हूँ। जैसे अभी एक इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है, हरियाणा चैप्टर का मैं इंचार्ज था, कन्वीनर था। अभी मैंने कुरुक्षेत्र में वो चैप्टर था, अभी मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ तो टाइम नहीं दे पाता। तो उसके माध्यम से बहुत सारे कॉलेजों में, रूरल एरियाज में जाके हमने एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की। और आप खुश होंगे कि हमने एक बल्कि वॉशरूम, लड़कियों लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग, 2 वॉशरूम बनवाए गांव में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास एक गांव है, उस गांव में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके माध्यम से, उसके तहत हमने रफली 1 लाख रुपए में 2 बढ़िया से बाथरूम बनवा दिए। तो एक इस तरह की चीज़ों में मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाए कहीं ना कहीं। या स्कूल में कभी रूरल स्कूल में जाके कुछ लेक्चर देना, बच्चों को साइंस के प्रति प्रोत्साहित करना, इस तरह की चीज़ों में मैं लगा रहता था। तो बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, उसके लिए भी आप कुछ कोशिश करते हैं? उसके लिए हमने पीछे हमने हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उनका ग्रुप बनाया कि भाई गांव में हाइजीन की बहुत प्रॉब्लम होती है। आप विश्वास करोगे, गांव में कई बार बाथरूम में जाए तो हाथ धोने का कोई जरूरत नहीं समझता। तो हम उनको बताते थे भाई हाइजीन क्या है, कैसे, उनका मतलब उनको पता नहीं। कई बार गांव में सब चीजें बढ़िया करते हैं, कई चीजें उनको शायद अनजाने जाने में पता नहीं होता। तो हमने एक अपना ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बनाया और एक दिन के लिए हमने कहा कि उस गांव में जाएंगे और गांव में जाके उनसे चाय पियेंगे, खाली बात करेंगे या पिलाएंगे चाय उनको। तो हम बैठे बैठे बातों बातों में हमने बहुत सारी चीजें चाय पे चर्चा करते रहे। तो उनको बहुत सारे लोगों को समझाया और उनको अच्छा लगा। और उनके साथ में कुछ नाटक, जैसे बच्चों ने कुछ नाटक वो किया, कुछ नुक्कड़ नाटक टाइप की, उस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उन्होंने गांव के लोगों को थोड़ा इन्वॉल्व किया अपने साथ में। और मेरे को अच्छा लगा कि ऐसी चीज़ों से वाकई में एनवायरनमेंट जरूर चेंज हो रहा है। एनवायरनमेंट तो चेंज होता है, लेकिन जो एक साइंटिफिक टेम्पर होता है कि लोगों का ध्यान साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, बच्चे चाहें कि वो इन फील्ड्स में आए, उसकी तरफ भी आप लोग कुछ करें? हाँ, वो जो हम जो लेक्चर स्कूल में कराते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट जो अच्छा लेक्चर दे सकते हैं हिंदी में, खासकर जो कनेक्ट करें बच्चों के साथ में, हम उनको लेके जाते थे और उनको थोड़ा सा पैसा हम थोड़ा सा खर्च देते थे। पर उनको मेन उसका ये था कि वो कैसे बच्चों को प्रोत्साहित करें, कैसे मोटिवेट करें। और वो हुआ काफ़ी, उसका फ़र्क नज़र आया मेरे को। कुछ कई स्टूडेंट्स में अप्रोच करते थे। लैब, वो हमारी बीच में जैसे स्कूल में स्टूडेंट है उसको लैब कभी देखने को नहीं मिलती, हम यूनिवर्सिटी में ले आते थे उनको एक दिन के लिए और सारा दिन यूनिवर्सिटी में उनको मस्ती कराते थे। मस्ती में उनको सारी लैब दिखा देते थे। उनके मन में फीलिंग आती थी यार यूनिवर्सिटी देखो ऐसी होती है और मैं जब बड़ा हूँगा तो मैं यहाँ पढ़ने आऊँगा। तो ऐसी फीलिंग उनमें जनरेट होती थी, मैं देखता था उनमें। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि इस तरह से अगर बच्चे चाहें कि वो मस्ती में समझें कि उनको कॉलेज में आना है, यूनिवर्सिटी। जी हाँ, ये मैंने कैम्ब्रिज में सीखा। कैम्ब्रिज में भी ये होता था। जब मैं स्टूडेंट था PhD का, वहाँ पे हमें साल में 3 दिन जो स्कूल के स्टूडेंट आते थे उनको हमें बताना पड़ता था कि हम क्या काम कर रहे हैं। अच्छा। तो मेरे मन में ये आइडिया था यार हम अपने यूनिवर्सिटी में क्यों ना करें, अपने देश में क्यों ना करें। तो उसको सोचते हुए हम ऐसी चीजें करने लगे। तो उसका इफेक्ट जरूर है और रिजल्ट उसका आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को लगता है धीरे धीरे बच्चों में ये आ रही है फीलिंग कि हाँ, व्हाई नॉट, यू नो, आई कैन ऑल्सो डू इट। और ये बहुत सुंदर पहल है अगर बच्चे इसको फॉलो करें। हाँ जी, बिल्कुल। आप कैम्ब्रिज की बात करते हैं, आप वहाँ एज अ स्टूडेंट गए, सेल्डन कॉलेज में पढ़े आप। You also went back and you keep going back now as a teacher, as a lecturer. Yeah, in fact, I was there from 90 to 94. Then my wife was there as a postdoctoral fellow. Then I again went in 1995. उसके बाद मैं वापस आने के बाद 98 में मैं इटली में गया 1 साल के लिए। त्रियेस्ते, वहाँ पे भी मैंने रिसर्च का काम किया था। देन अगेन आई वेंट टू कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज में मेरे को उन्होंने फेलो बनाया हुआ है कॉलेज का, सेल्विन कॉलेज का। आई एम फेलो, बाई फेलो। So I have been going there, yes, and meanwhile कॉन्फ्रेंसेस के लिए, वर्कशॉप्स के लिए मेरा जाना रहा है। पर हाँ, अच्छा लगता है कि जहाँ आपने पढ़ाई की है दोबारा जाने का मौका मिलता है तो अच्छा भी लगता है। तो वहाँ के माहौल में और यहाँ के माहौल में जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है या किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें फ़र्क क्या लगता है आपको?
ये तो सवाल बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जवाब यही है कि हर तरह के स्टूडेंट यहाँ पे भी अवेलेबल हैं और वहाँ पे भी हैं। या तो ये कह लो पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पर, तो हर बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता है, हर बच्चा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे शायद हम बहुत ज़्यादा नंबर में हैं तो कई बार उतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स में फ़र्क भी है, कभी कभी देखता हूँ, पर कुल मिला के शायद पॉपुलेशन वाली बात ज़्यादा है। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है वहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से। यहाँ रिसोर्सेज कितने भी बनाओ, पॉपुलेशन के हिसाब से रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। तो अपनी यूनिवर्सिटी में फिर आप क्या ये इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज दैट्स योर ओन एक्सपीरियंस, कि पर क्लास या पर प्रोफेसर जो स्टूडेंट्स हैं वो कम हो? हाँ, अभी हमारी यूनिवर्सिटी में मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है, और हमें लगता है आने वाले समय में और बेटर करना चाहिए, 15 स्टूडेंट पे एक टीचर हो जाना चाहिए नियम के हिसाब से, ताकि 1-to-1 एजुकेशन, ताकि हाँ 1-to-1 तो नहीं हो पाएगी, पर इन द सेंस कि आप 1-to-1 का मतलब स्मॉल ग्रुप, यस स्मॉल ग्रुप। और मेरा मानना है कि आजकल के युग में जहाँ ICT का बड़ा रोल है, यदि हम टीचर को थोड़ा सा मोटिवेट करें तो वो स्टूडेंट्स को काफ़ी ढंग से उसके साथ कांटेक्ट बढ़ा सकते हैं और नॉलेज उनको पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं। और क्योंकि हम अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया की बातें कर रहे हैं, हाँ जी। तो इसमें तो बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेसर और स्टूडेंट जो हैं उनका इंटरैक्शन बहुत क्लोज हो। तो मेरा मानना यही है कि स्टूडेंट्स को कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स देने चाहिए, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं उस तरह के प्रोजेक्ट देने चाहिए। मैं बताता हूँ, फरीदाबाद को हमने अभी हमारे गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी की लिस्ट में लिया है जी। तो हमारी फरीदाबाद शहर की एक अपनी अलग प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, सफाई की प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए ऐसे लाइव प्रोजेक्ट में, कि ठीक है एक ऐसा काम, खाली ऐसा काम किया जो केवल किताबों में बंद होकर रह जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा काम जो सोसाइटी के लिए डायरेक्टली कुछ हेल्प करे। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसी जैसे ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जाता है तो कंप्यूटर का हमारा जो स्टूडेंट है वो ऐसा काम करे, ऐसा मॉडल बनाए, ऐसा प्रोग्राम लिखे कि वो ट्रैफिक की जो ट्रैफिक जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करे, कि किस टाइम पे किस सड़क से ट्रैफिक जाना चाहिए, इस तरह ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा डेवलप करे। सो इस तरफ हमारा जरूर वो रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूं, टीचर्स को मोटिवेट करूं कि कुछ लाइव प्रोजेक्ट जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो उस तरह को इन्वॉल्व किया जाए। इसके साथ ही जुड़ी एक और समस्या है, वो एनवायरनमेंट की है। हाँ, आपने ट्रैफिक की बात की तो पोल्यूशन की बात आती है, तो साथ में एनवायरनमेंट को बचा कर रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए है कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि इस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचा के रखें। देखिए, फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल टाउन है और वाकई में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी और हमें वाकई में फरीदाबाद शहर में हर तरह की प्रॉब्लम्स को देखने का मौका मिल रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, इस बार एक प्रोग्राम शुरू किया अपनी यूनिवर्सिटी में, देखते हैं कैसा हमें सक्सेस कैसी मिलती है उसमें, MSc एनवायरनमेंट साइंस। और उसका जो सिलेबस जो हम बनाना चाहते हैं वो सिलेबस नॉर्मल सिलेबस ना हो, वो सिलेबस ऐसा हो जो वाकई में इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड हो, कि जो इंडस्ट्रीज हैं किस तरीके से एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं और किस तरीके से उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होकर लें और वो कंप्लीट एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएं जो एट द एंड ऑफ द डे जब डिग्री ले लें अपनी तो इमीडिएटली उनको जॉब मिल जाए। तो मेरा मानना यह है कि हम एनवायरनमेंट के इश्यूज को तभी एड्रेस कर पाएंगे एज ए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कि जब इस तरह के कोर्सेज शुरू करेंगे। तो हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और वाकई में अगर हमें 15-20 अच्छी इंडस्ट्रीज के साथ मिला तो डेफिनेटली दिस कोर्स विल बी वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। आई एम श्योर इट विल हैपन एंड हैपेंस। थैंक यू। आपसे एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जब कैम्ब्रिज गए पढ़ने को, were you ever tempted to stay back? Yes. ये भी एक ऐसी कहानी है, शायद मैं शेयर कर सकता हूँ। एक हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर धैया। अच्छा। तो वो बाई चांस वहाँ कैम्ब्रिज गए किसी कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए, तो उन्होंने मेरे को फोर्स किया। मैं तो चाह रहा था कि वहीं कैम्ब्रिज में रह जाऊँ। अच्छा। मैं, मेरी बेटी भी थी, मेरी वाइफ भी थी, कोई भी आना नहीं चाह रहा था एक बार तो। लेकिन प्रोफेसर धैया ने कहा कि नहीं भाई नहीं, जैसे आपने कहा ना ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम, उन्होंने मेरे को पूरा समझाया कि तुम पढ़ने आए थे, वापस चलो देश अपने। मैंने कहा सर मेरी वाइफ क्या करेगी? कहता नहीं तुम्हारी वाइफ को भी जॉब मिलेगी इमीडिएटली, जिस दिन तुम जाओगे वो मिलेगी। वाकई में शायद उन्होंने जो मेरे को मोटिवेट किया और जो कहा आने का, वो एक रीज़न था कि मैं वापस आया। और फिर सच में
कभी मेरे को बुरा नहीं लगता, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अपने देश में काम कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। नो रिग्रेट्स? नो रिग्रेट्स एट ऑल। आपने बात की यूनिवर्सिटी के फ्यूचर के बारे में, किस तरह के कोर्सेज होंगे, आपके पर्सनल क्या गोल्स हैं इस वक्त? मेरे पर्सनल गोल, देखो अल्टीमेट गोल, क्योंकि मैं वाइस चांसलर हूँ YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद का, तो मेरा गोल तो इमीडिएट गोल तो यही है कि मैं YMCA को टॉप पे चाहता हूँ। हालांकि अभी टॉप कह रहा हूँ, मेरा असली मकसद तब पूरा होगा, सपना तब पूरा होगा कि जब YMCA यूनिवर्सिटी को खाली हरियाणा और इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में लोग जाने, और जब इसमें रिसर्च की तरफ अच्छे अच्छे पेपर यहाँ से पब्लिश हों, नेचर के जर्नल में मेरा पेपर पब्लिश हो, तब मेरे को लगेगा हाँ कुछ मेरा उस तरह का चीज़ें हो रही हैं। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के एरिया में इसको बेस्ट बनाया जाए। ये मेरा पर्सनल एम है। Professor Saab, that's a huge dream and we do hope that it gets fulfilled and very soon. No doubt it is a huge dream, but nothing is impossible. I am sure something will come. और यदि लगे रहे तो कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ में मेरे को लगता है मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।